So as you know, 12th CBSE chemistry exam is on 28th of February, and you must be very worried organics about inorganics and physical chemistry. So मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस प्रिपेयर कर रही हूँ जो आपको लास्ट मिनट में करके ही जानी है. इनफैक्ट आई वुड से यू कि 22, 23, 24, 25, 26, 27 कम टू माई चैनल एंड सी दीज वीडियोज़, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे. So today I am going to start with the most important topic of organics. Okay, so I would like to tell you about DNP test, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स and carboxylic acid ka. And so many times in the problems statements in which you have to identify A, identify B, identify C, ये देखा गया है कि क्वेश्चन DNP टेस्ट पे आता ही आता है, इंक्लूडिंग टॉलेंस टेस्ट, इंक्लूडिंग फैलिंग्स टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो आज की वीडियो में मैं आपको अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इन डीएनपी टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इफ यू गो थ्रू दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट विद द डीएनपी टेस्ट. Now, before we do a particular question, I would like to tell you कि DNP क्या है. What is the DNP reagent? Okay, so as the name indicates, it is dinitro 2,4 dinitro phenyl hydrazine reagent. Now, if you do not know about DNP, please go through its structure. 2,4 dinitrophenylhydrazine. So phenyl, that means you have to take benzene ring like this, and at the 2 number you have to take nitro, at 4 number you have to take nitro, and it has to be with hydrazine. So this becomes 2,4 dinitrophenyl for this benzene ring and this hydrazine. Now why this reagent is important? Because अगर कहीं पर लिखा है कि एक कंपाउंड जो है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट देता है, that simply means that it is a carbonyl compound. So the compound A that we want to identify can be easily identified as a carbonyl compound if it is given that it is giving you the DNP test. So now, all those who are going through my video, if you are concentrating, you have to think that if it is giving 2,4-DNP test, it is a carbonyl compound. And what happens over here is that the carbonyl compound will give this oxygen, and this 2,4-DNP will give H2, which will be eliminated as a water, leading to formation of a compound which is known as 2,4-dinitrohydrazone. So this clarity you should have that what is DNP, and if a compound is giving this DNP test, then it has to be a carbonyl compound, and a carbonyl compound and DNP reacts like this. That means the water is eliminated and the corresponding product is formed. Now, after watching this video, you should know what is DNP. Please learn its structure. It's very easy. And the second thing that you should know is that if it is giving a DNP test, that compound has to be a carbonyl compound. I hope this is clear to you. Now, the second test that I am going to talk to you about is tolerance or phalanx test. Now, after this, given that the compound is giving a DNP test, आप ये इंटरप्रेट कर चुके होंगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है. अब एक कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो सकता है? कार्बोनिल कंपाउंड अगर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो इसके कीटोन्स होने की पॉसिबिलिटी है.
और अगर यही कार्बोनिल कंपाउंड एक H के साथ जुड़ा है और एक R के साथ जुड़ा है तो इसकी अल्डिहाइड होने की पॉसिबिलिटी है। इफ यू डू नॉट नो दिस, आई एम टेलिंग यू दिस कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड है या तो वो कीटोन होगा या वो एल्डिहाइड होगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि क्या वो एक अल्डिहाइड है या क्या वो कीटोन है? इसके लिए हमें क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी होगी, विच इज whether it is giving Tollens or Falling's test or not। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये Tollens और Falling's test देता है, if it gives this particular test then it has to be aldehyde, यानी कि आप इसके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के दूसरे स्टेप पर पहुंच चुके हो। ऑलरेडी आपको ये पता था कि इट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड, बट आफ्टर ये दिया गया कि ये टॉलन और फैलिंग टेस्ट भी देता है, ये पता लग जाएगा कि इट इज अल्डिहाइड, दिस इज अल्डिहाइड। बट ये भी हो सकता है कि ये गिवन हो कि ये टॉलेंस और फैलिंग टेस्ट नहीं देता। तो अगर ये लिखा है कि टॉलेंस और फैलिंग टेस्ट नहीं देता देन इट हैज टू बी कीटोन। दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर कि टॉलन या फैलिंग टेस्ट देता है तो ये अल्डिहाइड है, टॉलन या फैलिंग टेस्ट नहीं देता तो कीटोन है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये टॉलेंस या फैलिंग टेस्ट हैं क्या? तो टुडे आफ्टर डीएनपी आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टॉलेंस टेस्ट। नाम ही बताता है कि टॉलेंस टेस्ट में हम एक टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट इज सिल्वर, अमोनियकल नाइट्रेट, और आयनिक इक्वेशन में हम टॉलेंस रिएजेंट का दिस पार्ट कंसिडर करते हैं AgNH3 पॉजिटिव। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टॉलेंस रिएजेंट एंड दिस रिएक्शन हैपेंस इन द अल्कलाइन मीडियम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉलेंस से सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं, तो आपने यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया है वो अल्डिहाइड लेना है, CHO। और ये होगा क्या इसमें, जो टॉलेंस रिएजेंट आपने लिया इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिन लोगों को नहीं पता व्हाट डू यू मीन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन को नहीं करते हैं। तो अगर ये गिवन था कि टॉलेंट टेस्ट दे रहा है कंपाउंड तो उसकी पॉसिबिलिटी अल्डिहाइड की ही हो सकती है, क्योंकि बीइंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये केवल अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। और जिनको ऑर्गेनिक्स नहीं आती है, लेट मी टेल यू, अल्डिहाइड्स आर ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन में कन्वर्ट हो गया, टॉलेंस रिएजेंट खुद रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर में, विच इज वाई सिल्वर मिरर विल बी फॉर्म्ड along the walls of the test tube। तभी करके टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। तो बात चल रही थी, क्वेश्चन में ये गिवन था कि कंपाउंड ए है, डीएनपी टेस्ट देता है, वहां से ये पता लगा कि इट हैज टू बी कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरी इंफॉर्मेशन दी थी कि ये टॉलेंट टेस्ट देता है, वहां से ये पता लग गया कि ये एक एल्डिहाइड है और कीटोन नहीं है। द थर्ड इंफॉर्मेशन एंड द थर्ड पॉइंट जो कि स्ट्रक्चर को डिड्यूस करने के लिए दिया रहता है वो ये है कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। सो द थर्ड टेस्ट अबाउट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट देते ही ये पता लग जाता है कि ये एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके C डबल बॉन्ड O के वन ऑफ द साइड मिथाइल लगा ही होगा। The moment it is written that a particular compound is giving iodoform test, वहां से आपको स्ट्रक्चर डिड्यूस करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के एक साइड आपको मिथाइल लगाना ही लगाना है और दूसरी साइड H क्यों लगाना है, क्योंकि ये अल्डिहाइड है जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो आप इसका पूरा स्ट्रक्चर डिड्यूस कर चुके हो। डीएनपी टेस्ट से पता लगा था कि इट हैज टू बी C डबल बॉन्ड O। टॉलेंस से पता लगा कि एक H लगाना है क्योंकि इट हैज टू बी अल्डिहाइड,
और आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देते हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप के साथ मिथाइल लगा होता है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है? इन दिस वी पुट I2 plus NaOH or simply NaOI reagent. What happens over here is कि जहां से मिथाइल है वहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीडेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा COONA, और इस मिथाइल का क्या होगा? इट विल करेस्पॉन्डिंगली कन्वर्ट टू आयोडोफॉर्म विच इज अ येलो PPT. दैट इज वाई इट इज नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आज की वीडियो के बाद आपको ये 3 टेस्ट अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के प्लीज क्लियर करने हैं। DNP टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट एंड फैलिंग टॉलेंस टेस्ट एंड दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसके बाद मैं आपके लिए एक अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगी जहां पर इन टेस्ट की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।